In terms of entrepreneurial background, I would say I belong to a Maiman family. Uh, but other than that, regarding the education, I had a very poor education background when I was a kid. I was quite confused because पहले मैं religious school जाता था, मदरसा जाता था to do Quran hifz and that's full time. But वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो I joined school for maybe a year or two. मैंने 5 और 6 क्लास डायरेक्टली जाके पढ़ी और उसके बाद वापस मैं मदरसा आया 3-4 साल. तो अगेन जितनी भी मेरी स्कूल की जो बेसिस बनती हैं वो मेरी काफ़ी चीज़ बेसिक्स आज तक मुझे नहीं पता है और आई कुड नॉट हैव दैट टाइम इन द स्कूल. बट ये है कि हाँ इवेंचुअली कुछ ना कुछ करके इंटर पास किया, अपना मैट्रिक किया एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई एंडेड अप in University of Sussex in England, and that's when I personally feel that my actual education journey started. Because तब फिर research based understanding शुरू की कि learning कैसे होती है किसी भी चीज़ की, अपनी मेरी personal learning किस तरीके से होती है. तो basic background I think was not as excellent, but I think that also worked in my favor because a lot of times schools and that basic background gives you rules and regulations that you have to follow throughout the life, and I was never given those rules and regulations, so I could break them without knowing that those existed. So I don't know how different would it be. So yeah, I think there were multiple things going on at once. So basically my undergrad was in marketing. अब वो बहुत broad subject था, उसके अंदर multiple चीज़ें हो रही थी और उस वक्त तक तो more or less chilling ही गुजर रही थी ज़िंदगी के अंदर. बट इवेंचुअली आपको एक रिक्वायरमेंट भी लगने लगती है कि यार इफ़ आई ग्रेजुएट फ्रॉम हियर देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ मी. तो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट कि आप कम से कम उन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बहुत रीच कर सकें. उसके साथ साथ टू बी एबल टू फुलफिल दोज एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई पेरेंट्स एंड द पीपल दैट वुड हैव दोज, मैं उस वजह से मैंने मास्टर्स करने के लिए सोचना शुरू किया. एंड आई फाउंड अ सब्जेक्ट विच आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन, which was e-business management, and I was really fascinated by internet and how internet is making businesses and things possible that were not possible a decade ago. So there's a lot like there's a whole pool of world that's open और जितनी possibilities अब आपके पास आ गई हैं, तो I was very interested by that. मेरा फिर पर्सनली मैंने अपना जो लर्निंग पीरियड देखा वो ऐसे ही देखा कि आई वुड लर्न समथिंग, I would read a case study and learn that particular arena. तो केस स्टडीज़ देख देख के वो उसने अगर एक चीज़ इम्प्लीमेंट की है, एक चीज़ उसने अचीव की, तो वो कैसे की, व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज़ इट दैट दे डू इन देयर डे टू डे वर्क लाइफ दैट मेड देम पॉसिबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर XYZ. So then my learning cycle and my university education became like that. Yeah, I personally feel कि मतलब I have seen from the same families an extremely high achiever and also an underperformer from the same family. While both of them may have the same family background, both of them may have same ideals to look up to, लेकिन it eventually comes down to the person. मेरी फैमिली के अंदर हाँ वालिद साहब जो हैं मेरे बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ये है कि उन्होंने आके मुझे मेरे जहन के अंदर कभी बिजनेस ना ठोसने की कोशिश की, ना वाली चीज़ें. बट यस, आई यूज़ टू observe के how does he meet people, or he is very good with making valuable relationships with other people. So that's something I really learned from my father. But other than that, अगर चीज़ें कारोबारी चल भी रही होती तो बच्चे होते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस अपने हद तक उनका काम हो जाए. So that's extremely important for them. So not in the field of business, but I used to do photography and I thought why not make a quick bucks. So I started a photography job. I went to join this particular company which I did not know was more or less like a scam, not a scam, but वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका यही था, उसके अंदर फोटोग्राफी से ज़्यादा वो पिक्चर्स को बेचने का था. तो इन इवेंट्स आई वुड हैव टू गो टेक पिक्चर्स एंड देन ट्राई टू सेल, जिसकी मैंने पिक्चर ली फिर उसको यार ये ख़रीद लो, की चेन के अंदर इतने की है, इसके अंदर इतने की है. सो आई डिड दैट फॉर अ मंथ और टू. Other than that, when I was in my masters, I took a couple of items from Pakistan and I started my own online stores and as a part of my own learning experience. वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी,
लेकिन मैं चाहता था कि जो अगर चीज़ मुझे सुबह को यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने को मिल रही है वो शाम को मैं इम्प्लीमेंट करूँ, तो मैं एक्चुअली देख सकूँ कि जो मेरा टीचर बता रहा है वो सही भी बता रहा है। इफ़ नॉट, तो नेक्स्ट डे आई वुड गो टू हिम एंड आई वुड से दिस इज़ व्हाट यू सेड, आई डिड दिस, इट डिड नॉट वर्क। So even if he was wrong, or even if I was wrong, I would know why that was the case. Yeah, I think I was not ready to join an existing business because मेरी थ्योरी ये बन गई थी कि जब तक मैं 1 रुपये से 100 रुपये नहीं बना सकता तो मैं 100 रुपये से 1000 रुपये कैसे बनाऊंगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इवेंचुअली अपनी लाइफ के अंदर स्टेज के अंदर आ गया था कि मुझे अगर 1500 रुपये की भी अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, परचेजिंग डिसीजन लेना है, तो मैं उसको 10 मरतबा सोचूंगा। और कारोबार के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी डिसीजन मेकिंग कारोबार के अंदर बेसिकली देखना होता है कि यू हैव टू मेक वेरी बिग डिसीजंस एवरी डे। क्या मैंने परचेजिंग करनी है, फिर अगर मैं ट्रेडिंग में हूँ तो मैंने किस प्राइस पे परचेजिंग करनी है, क्या मैं आई विल बी एबल टू सेल दिस ऑफ एट अ पर्टिकुलर प्राइस और नॉट। तो ये कि मुझे पता था कि शुरू के कुछ साल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग के अंदर आप देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ फेलियर्स एज वेल। और अगर बहुत ज़्यादा कोई मैंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो फेल होने से डरूंगा। तो आई वांटेड टू स्टार्ट स्मॉल, आई वांटेड टू स्टार्ट ऑन माय ओन सो दैट मैं अपनी गलतियां खुद करूं, अपनी गलतियों से खुद सीखूं, रादर दैन टेकिंग ऑन समवन एल्सेज अचीवमेंट एंड देन गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो शुरू के अंदर तो मेरा यही इरादा था कि मैं खुद से एक चीज़ करूं। और इस काम करने से पहले भी मैंने कुछ ढेर सारी दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया। आई ऑल्सो डिड एन इंटर्नशिप एट अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, और उससे मुझे अनफॉर्चुनेटली ये पता चला कि कौन सी चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए क्लाइंट्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं और बहुत कम है जो अच्छा काम कर रही हैं। फिर मेरी कुछ चीज़ें यूट्यूब करियर के हवाले से ऐसे ही ठहरी हुई थी, तो मैंने कहा उनको भी रिज्यूम करता हूँ और साथ साथ जो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। सो बेसिकली मंटो वॉज स्टार्टेड and is also currently an e-commerce based business। ठीक है, मंटो वाले जो ड्रेसेस हैं, जो मेन इसके राउंड कॉलर वाले ड्रेसेस थे, आई यूज्ड टू रियली लाइक वेयरिंग दोज, और वो मोस्टली मुझे मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं मिलते थे। ऑल्सो अगर कहीं पे मिल जाते थे तो वो कपड़ा बहुत ज़्यादा जो है मज़े का नहीं होता था। तो मुझे एक सस्टेनेबल, एक क्वालिटी वाइज फैब्रिक के साथ एक पर्टिकुलर स्टाइल अगर नहीं मिल रहा था तो आई स्टार्ट क्रिएटिंग दैट माई सेल्फ एंड आई रियली वॉन्टेड टू टेस्ट थिंग्स ऑन द इंटरनेट। आई वॉज ऑलरेडी डूइंग अ कपल ऑफ ई-कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मैंने एक स्टोर बना लिया, उसके ऊपर कुछ चीज़ें बेच दी, कहीं पे नहीं बेची तो क्यों नहीं बेची, वो उसको अंडरस्टैंड किया। तो चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि ओके, आई एम गोना गो ऑन एंड स्टार्ट, because I really like this particular dress. I hope that there's more people like me and they also like it, so I started doing Manto. And I eventually realized कि जो मेरे मंटो वाले ड्रेसेस थे वो मेरी वाइफ भी पहनना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि मेरे पास एक ही कलर के 3 से 4 ड्रेसेस सेम स्टाइल के होते थे। तो एक दिन उन्होंने पहना, शी ऑल्सो रियली लाइक्ड इट, सो शी स्टार्टेड ऑल्सो वेयरिंग दोज। सो आई फाउंड अ न्यू ऑडियंस दैट कुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर कपड़े हैं वो यूनिसेक्स नहीं होते, और बहुत मतलब कपड़ों का भी एक हद तक ठीक अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक या मैन सेंट्रिक कपड़े होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बट देयर सिंपल ड्रेसेस, क्लोथ जो कि कहीं पे भी दुनिया के अंदर एक वाइट प्लेन टी शर्ट होगी तो एक ख़वातीन भी पहन सकती हैं, मर्द भी पहन सकता है, एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैट। लेकिन हमारा जो सिंपल ड्रेस है, शलवार कमीज़, उसके अंदर बहुत सारा एक गैप जो है ठहरा हुआ था। एंड एज वुमेन स्टार्टेड वेयरिंग मंटो, alhamdulillah right now 90% of our customers are women, and alhamdulillah we are getting 30% of repeat customers. So I'm hoping and I hope that this is a sign of satisfaction, because Manto was not the first e-commerce project that I did. तो मुझे पहले से कुछ आइडिया था कि कहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन सी इसकी रेगुलेशंस हैं, किस तरीके की मेरी कॉस्टिंग, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स के अंदर मेरी क्या कॉस्ट लगेगी, मार्केटिंग के अंदर शायद मेरी क्या कॉस्ट लगेगी। तो वो मेरे पास ओवरऑल आइडिया था। और बेसिक फीजिबिलिटी, आई एम नॉट एन अकाउंट्स का, आई एम नॉट अ फाइनेंस का, लेकिन जिस हद तक जितना मुझे पता था उतनी मैंने बेसिक फीजिबिलिटी अपने हिसाब के लिए अपने जहन में बनाई हुई थी। और मैंने एक बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो बनाया हुआ था। वर्स्ट केस सिनेरियो वाज नॉट टू बैड एंड बेस्ट केस सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ।
तो एट दैट पॉइंट तो हमने फिर ये भी क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत फीसिबिलिटी के साथ लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर राइट नाउ. वी आर नॉट हियर टू compete with really big brands. We are here to every day try to be better than yesterday. तो for that particular area and it's extremely important for growth. तो we really listen to our customers. उसके अंदर हमें पता चल जाता है. It's extremely valuable for us. कोई भी चीज़ होती है तो उससे we are directly able to shape our business. And alhamdulillah, right now the size of our business is as such that it can be shaped with the recommendations of people. At some point अगर आपने बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है तो आप इतने फंस चुके होते हैं काफ़ी मरतबा कि आप उसकी वजह से it cannot be a customer driven business. But if it's from the day one, it is a customer centric business, so eventually this is how it's going to be. अच्छा, दूसरी चीज़, in terms of partners, it's always good to collaborate, it's always good to partner. I believe in partnerships even from day one, but it's also important कि जो आपके साथ पार्टनर है उसका विजन और आपका विजन somewhat align करे, और अगर align नहीं कर रहा है तो one of you should take the lead in describing that vision and the other one should just be there to follow it. Secondly, both the partners should be able to create that particular value that they are expected to. अब इसके अंदर कोई पार्टनर अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग पार्टनर है, फाइनेंस पार्टनर है, तो द एक्सपेक्टेशन और द वैल्यू टू बी गेन्ड फ्रॉम दैट वुड बी द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. लेकिन अगर कोई पार्टनर एक्टिविटी बेस्ड है, जो कि आजकल जिस तरीके के बिजनेस टेक्निकल बिजनेसेस आ रहे हैं, तो इसके अंदर एवरीथिंग इज़ मोर और लेस एक्टिविटी बेस्ड एंड स्किल बेस्ड. तो आपकी कम से कम एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी आपके साथ पार्टनरशिप करेगा वो वैल्यूएबल होगा. तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अभी भी दोस्त हैं, उनके साथ हमने कोशिश की बट इट डिड नॉट वर्क आउट एज अ वेरी गुड पार्टनरशिप, इवन दो वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स. जैसे हम थे शायद बेहतर दोस्त होंगे. आज भी अगर उनको कोई ज़रूरत होती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत होती है तो वो हेल्प कर देते हैं. बट विद मंटो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी पार्टनरशिप एज सच. हाउएवर पार्टनर होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिवाइड हो जाती है, एक वाली चीज़ बेहतर हो जाती है. जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हो तो आपका दिमाग उस तरफ चल रहा होता है, एंड दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज नॉट ऑल द टाइम दैट यू वर्किंग यू हैव टू बी टाइपिंग स्टफ और डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. हाँ, देयर वुड बी टाइम्स दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डू ऑल दैट बोरिंग थिंग्स. जो मतलब हर काम के अंदर जितना भी आपको एक्साइटिंग लगे, देयर वुड बी बोरिंग थिंग्स दैट यू हैव टू डू. सो शायद ऐसे काफ़ी दिन गुजरे होंगे कि मैंने कंप्यूटर पे बिल्कुल ना बैठा हूँ, सोच के अंदर वो एक चीज़ चल रही है, आइडिया आया, पेन डाउन किया, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इफ़ वी कैन अप्लाई. शायद उसके अंदर चैलेंजेस आ जाए तो वो आइडिया बैक ऑफ हो गई, या फिर हम उसको फर्दर इम्प्रूव कर दें. या फिर ऐसा भी टाइम आया है जब वेबसाइट लॉन्च करनी है, हर चीज़ करनी है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ आउट देयर. तो फोटोशूट कर रहे हैं, फिर पिक्चर्स एडिट कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, बैक एंड, इंस्टाग्राम. सो ऐसा भी टाइम आया कि सुबह से शाम तक बस कंप्यूटर पे लगे हुए काम भी कर रहे हैं. तो इट्स बिन मोर और लेस लाइक अ बैलेंस इन दैट रिगार्ड. बट इफ यू आर गोना लाइक व्हाट यू आर गोना डूइंग, इट्स फाइन. सो बेसिकली विद डिजिटल बिजनेसेस द इंटरेस्टिंग एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज दैट to test the waters you don't have to put a lot of finances in. I do not come from the background of fashion industry, neither the textile industry, so I had no idea how this particular industry works in terms of the business side of things. ठीक है, इसके अंदर basically it's not only about making a good dress. You can be a very good designer, you can make a good dress and you can sell it off for a profit that you get the value from, but it may not necessarily be a business. ठीक है, for it to have that sustainability and have that long term sustainability, I had to first of all study कि किस तरीके से फैशन हाउसेस वर्क करते हैं. बिकॉज जो मैंने पहले शुरू किया जिसमें मैंने सिर्फ वाटर्स टेस्ट किए, तो आई ओनली मेड अराउंड 30 to 40 ड्रेसेस. ठीक है, लेकिन ये कि जब उसके ऊपर रिस्पॉन्स देखा, कहीं पे चैलेंजेस थे, कुछ भी था, तो उसको बेहतर करते 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 तो आई रियलाइज कि शुरू के अंदर तो मैंने आई स्टार्टेड इट ऑफ विद all the money that I had saved. It was around 100,000, 150,000 rupees. बट ये है कि जब वो सेल ऑफ कर दिया, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आ गया एंड आई अंडरस्टूड कि यार कहाँ वीकनेसेस है, कितनी रिक्वायरमेंट है. मैं जितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लूँ, मेरे पास वो कपड़े होने तो चाहिए जो मुझे बेचने हैं. और मेरा ऐसा प्रोसेस नहीं था कि मैं मार्केट से उठाया और आज उठाया कल बनवा लिया. सो यू आर गेटिंग ऑल ऑफ आवर फैब्रिक मेड एज पर आवर रिक्वायरमेंट. सो दैट ऑल्सो बहुत ज़्यादा उससे प्रोसेस लेंदी हो जाता है. तो
शुरू के अंदर बेसिक टेस्ट वाटर कर लिया विद अ बेसिक इन्वेस्टमेंट कि अल्लाह ना करे उसके अंदर वो लॉस भी हो जाता, तो इट वुड नॉट बी अ डेवास्टेटिंग लॉस दैट वुड स्क्रू द स्लीप ऑफ योर नाइट्स. बट ये कि टेस्ट होने के बाद जब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद आई सी मोर पोटेंशियल इन देयर, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो जाता है. फिर आई वेंट इन टू गेटिंग सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई फैमिली एंड उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था. इट वॉज बिटवीन $0.5 to $1 million, which is in today's world, if you want to start a business, that's nothing. So one thing that is unfortunately not supposed to be a unique selling point, पूरी दुनिया के अंदर उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर दैट हैज़ बिकम अ यूनिक सेलिंग पॉइंट बिकॉज वो अवेलेबल नहीं है कहीं पे, या अगर है तो बहुत कम जगहों पर है, विच इज़ कस्टमर सर्विस. एक्चुअल कस्टमर सर्विस नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर, बट दिल से ये समझना, ये चाहना कि यार अगर मुझसे कोई मुझ पे यकीन कर रहा है एंड इफ दे आर स्पेंडिंग फॉर एग्जाम्पल ₹5,000 to get a dress from us, so it becomes our duty, it becomes our responsibility to ensure that we give them what they are expecting at least. और अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको फुलफिल कर सकें. ये सुन्नत भी है इस तरीके की चीज़ को सोचना. और जब हमने इस प्रैक्टिस को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर लेकर आ गए, सो वी आर वेरी शॉक्ड टू सी दैट इवन द टाइनीस्ट जेस्चर्स, इवन व्हाट इज़ एक्चुअली कस्टमर्स राइट, कस्टमर को सिर्फ हम उसका राइट दे दें तो दे वुड बिकम वेरी हैप्पी. एंड एज गुड इट वॉज फॉर अस, आई वॉज ऑल्सो सैड टू सी दैट इट शुड नॉट बी this exciting. I mean, it should be more common to have good customer service. It should be more common for customers and for myself as well as a customer to be able to use my right to ensure that if I am getting something, that's what I was promised or at least what I expected. तो हमने एक ये चीज़ करना शुरू कर दी. दूसरा, I realized that most of the brands in Pakistan that I cannot compete with, the big brands, they're constantly trying to tell their customers and trying to show other people that they are very big brands. Manto was not a big brand, and we are not here to tell our customers that we are a big brand, but rather than that, we are here to tell our customers that they are special and they are the ones that are big, right? So that changes our whole approach. यहाँ पे एक इंसान आपको एक ब्रांड आपको कह रहा है कि यार मुझसे खरीदो मैं बड़ा हूँ, हमारा we made sure that from the first day, if someone's coming to shop from Manto, even if they do not end up purchasing something, they should leave with that smile. They should feel acknowledged, they should feel valued within their own selves. And alhamdulillah, and this was not only for the sake of profits or for the sake of business. We wanted to do this inherently, and we experienced that this always has a very positive response. As a result, most of our customers speak to us like we are their friends. जहाँ पे प्राइवेसी और इतने इस तरीके के इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, वहाँ पे कस्टमर्स add themselves on WhatsApp and communicate with us on their WhatsApp, a place where they speak with their family and friends. So alhamdulillah, I'm so happy that we have achieved that position with the Manto family, and I hope that we can continue doing that as much as we grow. It seems challenging because अभी हमारी फैमिली के अंदर शायद 3,000 लोग थे, 4,000 लोग थे in 1 year. But once it's 30,000 people, it may become difficult to communicate with everyone in the same standard. But we are trying, and I did not go to school, so I do not know the rules. So maybe we can just here with Manto specifically. हम पहले सिर्फ एक स्टैंडर्ड स्टाइल कर रहे थे, तो उसके लिए हमें एक ही तरीके का फैब्रिक चाहिए होता था, जो कि मैंने 3 महीने 4 महीने, इवन तो मुझे पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन 3-4 महीने रिसर्च करते आई थिंक 3-4 महीने भी नहीं, साल हो गया इवेंचुअली, जब मैंने फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग एंड सैम्पलिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स. तो उसके बाद अब हमारा जितना भी मटेरियल है, फैब्रिक है, वो एक जो हमारे मेन डिज़ाइंस का है, जिसकी वजह से मंटो भी इज़ नोन, वो एक जगह पे एक टेक्सटाइल मिल है जो कि बहुत रेप्यूटेबल है. दे प्रोवाइड वेरी गुड क्वालिटी फैब्रिक एंड दे हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट मशीन्स इन पाकिस्तान फॉर द पर्टिकुलर फैब्रिक दैट वी यूज़. तो उनसे जो है हम उन पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा फैब्रिक वहाँ से आता है उस पर्टिकुलर चीज़ों का.
उसके अलावा फिर अब हम जब कोई भी एक नई आइटम या कोई नई प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम करना है, लॉन्च करना है, तो हम 4-5 महीने, कम से कम 3 महीने कहीं नहीं जाते हैं हमारी प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेके, डिफरेंट वेंडर्स से लेके टेस्टिंग शुरू हो जाती है. सो वी ट्राई टू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल ऑन आर R&D एंड सैम्पलिंग, सो दैट जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो तो वो एटलीस्ट डिज़ायरेबल हो, एटलीस्ट हम उसको पसंद करते हो ऐसी चीज़ लेकर आएँ, ना कि कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो अवेलेबल थी बट समथिंग दैट इवन वी वुड नॉट गेट. तो एक बार सैम्पलिंग और शुरू के फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. एक चीज़ बनाने में 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने लग जाती हैं. लेकिन फिर ये कि एक बार प्रोसेस सही हो जाता है तो वो टाइम 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है. पहले हम एक सिंगल वेंडर से स्टिचिंग करवा रहे थे. नाउ वी हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इन हाउस स्टिचिंग फैक्ट्री, ताकि हमारी क्वालिटी और वो सब चीज़ बरकरार रहे. जिस बेसिस पे मंटो शुरू हुआ था, जो इसके मिनिमल सिंपल ड्रेसेस थे, फर्स्ट डे से थे और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे. वेयर एज दूसरी चीज़ें शायद जो भी, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट कीप ऑन कमिंग इन ऑन आवर टेबल. जब हम साथ बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, वी कैन डू दिस एंड वी कैन डू दैट. सो मे बी two out of those 10 things we end up trying, but we have to keep trying new things so that we can also challenge ourselves to improve. कोविड से पहले तमाम प्रोडक्शन आ चुकी थी और जो है क्या कहते हैं, अब प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास सामान भी था और फ़ोटोशूट लाजमी था प्रोडक्ट्स को अगर ऑनलाइन डिस्प्ले करना है, और फ़ोटोशूट नहीं हुआ था तो जो जिन कलर्स का नहीं हुआ था, कुछ का हुआ था कुछ का नहीं, तो मैंने घर के अंदर ही कैमरा निकाला और ख़ुद पहन के पिक्चर्स ले ली. मैंने बोला राइट नाउ आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ मॉडल और एनीथिंग, बट people need to see what they're getting, and this is the only way that people can get. And I've invested a good number of money within this particular production, so I have to make sure कि मैंने रमज़ान का सोच के किया था कि वो at least I can create some value out of it. तो जैसे ही फिर हमने उसको रिज्यूम किया, मैंने उस पिक्चर्स खींचने के बाद बस ऐसे ही जाके उसको लॉन्च किया, और alhamdulillah the response was very good because a lot of people could not go to the markets at that time, and then they also really liked the concept of Manto. अब वो हमारे लिए ऐसा मोमेंट था कि there were a lot of new people that were willing to try us, because हमसे नहीं तो उनको किसी ना किसी से जाके ऑनलाइन खरीदना ही था, तो they just said कि okay let's just test, do this particular test with Manto. Now our mission and our challenge was to make sure कि अगर कोई एक बार आके मंटो से परचेस करके जा रहा है, शॉप करके जा रहा है, so that we make the experience good enough that they keep coming back inshallah, that it's not just a one-off purchase during COVID, but it's a lifelong relationship. So alhamdulillah we were somewhat successful in achieving that. जैसे ही हमने लॉन्च किया 10 से 12 दिन के अंदर जो हमारे रनिंग आर्टिकल्स थे, जो बेहतर कलर्स थे, वो तकरीबन सोल्ड आउट हो गए, और मोर और लेस वही चीज़ें पीछे रह गई जो कि या तो ऑड साइज़ थे, एक्स्ट्रा लार्ज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कलर का, इस तरीके की एक दो करके चीज़ें रह गई. तो अलहमदिल्ला 70% ऑफ आवर स्टॉक वेंट आउट ऑफ स्टॉक विद इन 10 days to 15 days. हालांकि मैंने जो स्टॉक बनाया हुआ था, मैंने सोचा था 4 से 5 महीने का मेरा टारगेट था कि आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट, बट देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई ऑल्सो रियलाइज्ड इट्स नॉट अबाउट गेटिंग रिड ऑफ स्टॉक, इट्स एट एनी टाइम मेकिंग श्योर. काफ़ी लोग ये भी कर लेते हैं कि यार सोल्ड आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन for me it's the purpose is not to go sold out, but to ensure that if you are my customer and if you require something, I'm able to provide that to you at any given point. हाँ, हो जाता है कभी डिमांड हाई हो जाती है, अनसर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, so that's a different case scenario.